Hello everyone. Today topic is pair of linear equation with two variable, which is important for class 10 CBSE board and class 9 ICSE board. So what is a linear equation? That means which equation has maximum power is 1. Just example is ax plus by plus c is equal to 0. That means here x is by default 1. That means maximum power is 1. So this one is the linear equation. And ax plus by plus c is equal to 0. Here y is also a power is 1. So this one is the linear equation. Now pair of linear equation means pair means two linear equation with two variable. That means one variable is x and other variable is y, and variable is what? Variable which can be changeable is called a variable. So pair of linear equation is in the format of a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 is equation first, and a2 x plus b2 y plus c2 is 0. So equation 2. Now यहाँ पे सबसे यूनिक बात आता है कि अगर ये दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पर्टिकुलरली कुछ मेथड है. उस मेथड के थ्रू ही हम लोग इसे सॉल्व करते हैं. ठीक है. जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास जो है, फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. Substitution method. Second one is elimination method, and last one is cross multiplication method. And last one is also a graph method. So first of all I want to discuss substitution method. Okay, so let's example 1. So let's example first is based on the substitution method. So example is 3x plus 4y is equal to 2 is equation first, and 2x plus y is equal to 1 is equation 2. Now solving this one by the use of substitution method. Solving this equation by the use of substitution method. So method is what? That means substitution means substitute करेंगे. That means एक इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे या फिर y का वैल्यू निकालेंगे और उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे. जस्ट लाइक मैं इक्वेशन फर्स्ट से मैं x का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ और इसे इक्वेशन y में इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू पुट कर दूंगा, या फिर इक्वेशन सेकंड से मैं x का वैल्यू निकालूंगा y में पुट कर सकता हूँ, या फिर y का भी निकालूंगा इक्वेशन सेकंड से तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकता हूँ. तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो लेट्स टेक इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 4y is equal to 2. Now 3x is equal to 2 minus 4y and x is equal to 2 minus 4y by 3. Now putting this value in equation second. Now putting this value in equation second.
So second equation is 2x plus y is equal to 1, and what is the value of x? 2 minus 4y by 3 plus y is equal to 1. So multiply this one. 4 minus 8y by 3 plus y equal to 1, and 4 minus 8y plus 3y 3 equal to 1. दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे एलसीएम 3 लेंगे और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इस पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 8y आएगा। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 3 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा तो आएगा क्या 3, 3 को y से मल्टीप्लाई करूंगा 3y आएगा। सो इसके बाद ए माइनस 8y प्लस 3y दैट मीन्स माइनस 5y प्लस 4 और 3 is cross this one, that means 3. So minus 5y is equal to minus 1. This goes on other side. So minus minus cancel out, that means y is equal to 1 by 5. Now putting the value of y in equation first or second. आप इसका वैल्यू आइदर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में इसी में भी पुट कर सकते हो। सो मैं पुट कर देता हूँ इसका इक्वेशन सेकंड में। इन इक्वेशन सेकंड सो क्या होगा, 2x प्लस 1 बाई 5 इक्वल टू 1. सो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 5. सो एलसीएम लूंगा तो 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4 बाई 5. ओके, 2 cancel out, that means x is equal to 2 by 5. So now answer is x is equal to 2 by 5 and y is 1 by 5 is the answer. Now topic is elimination method. So we can solve another question with the help of elimination method. So question first is x minus y is equal to a equation first, and second equation x by 3 plus y by 2 is equal to 6. Equation 2. In equation second, we take the rational addition. So 3 and 2 is 6. 2x plus 3y is equal to 6. After that, 2x plus 3y is equal to 36 is equation third. Now in elimination method, we eliminate either x or either y. So हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे y को. So हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट we multiply by 3 and add equation 3 into 1. So equation first, this one, 3x minus 3y is equal to 9, and equation third is 2x minus 3y is equal to 36. Sorry, this one is plus. Now addition of both equation. So 3y and 3y is cancel out, 3 and 2, that means 5x is equal to 9 6, that means 45. So 5 9s, so x is equal to 9. X is equal to 9. So putting in this value in equation first. So x is equal to 9. Okay. This value in equation first. X minus y is equal to 3. So x is equal to 9 minus y is equal to 3. So
y is equal to 6. Y is equal to 6. So x and y is equal to 9, 6 is the answer. This one is the elimination method, not x cross multiplication method. Cross multiplication method. So take the example is x minus y is equal to 3, equation first, and second is equation is 2x plus 3y is equal to 36, equation 2. Now solution is, so first of all we take x and y and 1. So x is equation, दैट मीन्स जब भी अगर x का वैल्यू लिखा जाता है तो हम लोग x को कवर करेंगे, तो रिमेनिंग क्या बच रहा है माइनस मीन्स y का कोफिशिएंट लेना है। तो दैट मीन्स यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -1 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3। और इस पार्ट को मैं लिखने का भूल गया हूँ कि इस इक्वेशन को इस तरह लिखूंगा मैं, दैट मीन्स x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सो वो -1 एंड 3 एंड दिस वन इज -3 एंड माइनस 36। मतलब मैं x पार्ट को कवर करूँगा और बाकी जो पार्ट है उसको मैं लिख दूंगा। दैट मीन्स y का कोफिशिएंट -1 है और y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और ये 3 इधर जाएगा तो दैट मीन्स -3 यहाँ पे लिखेंगे और जो 36 इधर आ गया तो दैट मीन्स -36 लिखेंगे। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है y का, दैट मीन्स y हम लोग क्या करते हैं जस्ट रिवर्स लिखते हैं। दैट मीन्स y को अगर हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे तो हम लोग को पहले x का पार्ट लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या, फर्स्ट में ये 3 -3 एंड 36 लिखा हुआ है ऑलरेडी। सो हम लोग क्या लिखेंगे अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है वहाँ पे 1 है और नीचे में 2 है, ओके। एंड लास्ट वन इज कोफिशिएंट इज c। तो ये कोफिशिएंट अगर हमें लिखना होगा तो पहले क्या लिखेंगे x और y, x का दैट मीन्स 1 एंड 2 जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और y का क्या होगा -1 एंड 3, -1 एंड 3। -1 एंड 3। अब यहाँ एक कंसेप्ट अराइज होता है कि सर यहाँ पे ये -3 को फर्स्ट में क्यों लिखें, हम लोग को अगर ये y पार्ट बोला गया था तो ये c क्यों लिखे, ये लिखना चाहिए था पहले, क्योंकि यहाँ पे y का पार्ट नेगेटिव होता है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे स्विच कर दिए, इस पार्ट को हम लोग इधर लिख दिए और इस पार्ट को इधर लिख दिए, इस नेगेटिव को हटाने के लिए। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए इसे सॉल्व करने का मेथड क्या है, x बाई, तो ये क्या होगा, फर्स्ट जो मेथड होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स -1 एंड -36, -1 इंटू -36 माइनस ये बीच में माइनस होगा और 3 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू -3 इज इक्वल टू y, दिस वन -3 इंटू 2 -1 इंटू -36 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 -2 इंटू -1। सो नाउ x बाई -1 एंड -36, -1 and -36, that means this one is 36 minus plus 9 is equal to y by 3 2 -6 minus plus 36 and this one is equal to 1 by 3 plus 2. So now x by 96, that means 45 is equal to y by 6, that means 30
एंड दिस वन इज इक्वल टू 1/5. नाउ यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों को बीच में लूँगा वैल्यू. दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे x/45 इज इक्वल टू 1/5. 5 9 सा दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 9 वैल्यू. नाउ y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये दोनों को बीच में लेंगे. सो y/30 इज इक्वल टू 1/5. 5 6 सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इक्वल टू 6. सो ये आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, थैंक यू. नाउ क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit, the breadth by 2 unit, the area increased by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. So first of all, we take the assumptions. That means let length be a x unit and breadth be a y unit. I don't know what is the unit and it is a short length and this one is the breadth. So area is L into B. So x into y. This one is the square unit. Okay. If its length is increased, so according to question, if its length is rectangle gets reduces by 9 square the area of. If its length इसका क्या बोला गया है, रिड्यूस किया गया है 5 यूनिट से एंड ब्रेथ क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है 3 यूनिट से. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट मीन्स एरिया जो बोला गया ना, ये एरिया रिड्यूस किया गया है 9 स्क्वायर यूनिट से. तो लेंथ और एरिया इक्वल टू L इंटू बी. सो एरिया क्या बोला गया है कि वो माइनस किया गया. सो एरिया हमारे पास क्या है, x एंड y. सो x एंड y और L का वैल्यू क्या है, x और ये y. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x y क्या है हमारे पास 9 से रिड्यूस कर दिया गया है -9. और लेंथ जो था हमारे पास वो लेंथ को क्या बोला गया है, लेंथ को 5 यूनिट जो बोला गया है वो रिड्यूस कर दिया गया है. जो दैट मीन्स x-5 एंड y को बोला गया है दैट मीन्स ब्रेथ क्या है, इंक्रीज किया गया 3 यूनिट. दैट मीन्स y प्लस 3. ओके. नाउ इसके बाद इसे मैं सॉल्व करूँगा. तो सॉल्व करने पे क्या होगा, ये सॉल्व करने पे होगा ये आपका xy माइनस 9 इज इक्वल टू xy प्लस 3x माइनस 5y minus 15. So xy is cancel out. So 3x minus 5y. So 3x minus 5y and minus 15 is goes on other side. So plus 15 that means equal to 6. Equation first. और इसको मैं इस तरह भी ले सकता हूँ 3x minus 5y minus 6 is equal to 0. इक्वेशन फर्स्ट. ओके. नाउ अब सेकंड पार्ट में जो बोला गया है आपके पास वो देखिए. सेकंड पार्ट में बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ बाई 3 यूनिट. लेंथ को क्या बोला गया है, 3 यूनिट से मैं अगर इंक्रीज कर देता हूँ और ब्रेड को 2 यूनिट से क्या कर दिया गया एंड द ब्रेड बाय 2 यूनिट. ओके. 2 यूनिट द एरिया ऑफ इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट. 67 स्क्वायर यूनिट मतलब यहाँ पे लेंथ को मैं भी 3 यूनिट से इंक्रीज कर रहा हूँ और ब्रेथ दोनों को. ठीक है. एंड बोला गया है दैट मीन्स ये 3 यूनिट से हो गया इंक्रीज और ये 2 यूनिट से इंक्रीज हो गया. तो एरिया में कितना हो रहा है इंक्रीज 67. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं xy इज इक्वल टू xy. ओके. एरिया इक्वल टू L इंटू बी. सो अब एरिया में बोला गया है आपके पास क्या इंक्रीज करने के लिए 67 और लेंथ में क्या बोला गया है 3 यूनिट एंड ब्रेथ में क्या बोला गया है 2 यूनिट. तो ये ले सकता हूँ हम लोग. सो इसको अगर xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 xy कैंसिल आउट.
So this one is 2x plus 3y, 6 is goes on the other side, that means minus 61 is equal to 0, इक्वेशन 2. ओके, नाउ अब मैं ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है. और सॉल्व करने का एक मेथड, आसान सा मेथड है कि आप इसमें क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, ओके, इन इक्वेशन फर्स्ट में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन जो सेकंड है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, ये होल पार्ट में होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में. अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 6x माइनस 10y, ओके, माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड 3 2 is 6x प्लस 9y माइनस 3 183 इज इक्वल टू 0. नाउ अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये देख लीजिए मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है. माइनस करने पे क्या होता है ग्रुप, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ माइनस होगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ पे प्लस करेंगे. दैट मीन्स एक्स एक्स कैंसिल आउट और ये -10 और -9. अब इसका साइन क्या हो गया, माइनस हो गया. सो आपको यहाँ पे ध्यान से देना होगा, देखना होगा ये -9y है और -10y है. दैट मीन्स क्या हो जाएगा, -19y. और ये यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, 183 में अगर 12 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 171. और साइन इसका क्या है, प्लस. दैट मीन्स दिस वन प्लस इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स 19y इज इक्वल टू 171. ओके, दैट मीन्स 19 9s are. So that means y is equal to 9. y is equal to 9. So हम लोग पुट करेंगे इसका वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में. इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो दैट मीन्स 3x माइनस 5 इंटू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 5 9s are 45, 45 and 6. दैट मीन्स 51. 51 दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 51. So this is equal to 17. That means x is equal to 17 and y equal to 9. That means आपको क्या फाइंड आउट करना था, इक्वेशन में देख लीजिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल एक्स का यूनिट क्या हो गया आपके पास, ये 17 होगा और ये क्या होगा 9. ये क्या होगा, यूनिट, ये भी यूनिट. दिस इज द आंसर.